Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको प्यार भरा अभिनंदन। We have given this chance by the Lord to come together and worship Him. हमको ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आके उसकी इबादत करें। I want to thank the Lord for giving us this opportunity. और मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस समय के लिए कि खुदा ने हमको ये मौका दिया। I'm excited to worship before Him. मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ कि आज हम परमेश्वर की इबादत करेंगे। So let's start with the word of prayer. तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। Father God, we are thankful to you. प्रभु तेरा धन्यवाद Yes, Lord, for this time that you have given to us, Lord. इस समय के लिए जो आपने हमको दिया है। Lord, we humble ourselves in your presence, Lord. अपने आप को आपकी उपस्थिति में दीन करते। Lord, it's only your grace that sustains us, Master. ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है कि आपने हमको आज तक चलाया है खुदा। Lord, help us to glorify your name, Master. अपने आप को आपको महिमान्वित करने में हमको मदद कीजिए। Thank you, Lord, for giving us this time. इस समय को देने के लिए धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. प्रभु के नाम में Amen. आमीन। It is important for us to seek the Lord. ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा को ढूंढें। The word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है you will seek him and you will find him कि also. तुम उसको ढूंढोगे और उसको तुम पाओगे। Amen. Amen. We are given this opportunity to seek him once again. और हमको ये मौका मिला है कि हम एक बार फिर परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को खोजें। And one of the ways to seek him is to worship him. और एक तरीका जो हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं वो है खुदा की इबादत। Worship pleases the Lord. जब हम इबादत करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर को भाता है। Don't you feel happy when somebody praises you? क्या आपको अच्छा नहीं लगता है जब आपकी कोई तारीफ करता है? So let's together praise the Lord, for he really deserves the praises. तो आइए हम मिलके परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि वो हर स्तुति के योग्य है। Amen. Amen. Let's start. आराधना करूं दिल से, दिल से. Let's bow our heads one more time before God, beloved. Let's tell him that, Lord, I want to glorify your name. दिल से, दिल से. मेरे सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांस में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, Jesus, Father, we love you, Lord. Yes, Lord, we offer ourselves to you, Master. We glorify you, Father God. Your name is holy, 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 Lord. You deserve all the praises, Master. You have given us this opportunity, Lord. Jesus, we love you, Lord. We want to say that we love you, Father God. Come and take over, Father. Fill us with your presence, O God. Lord Jesus, thank you, Lord. We offer ourselves completely unto you, Lord, knowing that we are safe in your hands, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, we are thankful to you for giving us this time. प्रभु इस समय हमको देने के लिए तेरा धन्यवाद। Lord, we thank you that you reign all over, Father God. प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि प्रभु आप हर जगह ही प्रभु राज करते हैं प्रभु। Lord, great is your faithfulness, Lord. प्रभु आपकी विश्वास योग्यता बहुत ही अधिक है। Lord, you have loved us when we were yet sinners, Master. जब हम पापी ही थे तभी आपने हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया। Thank you, Father, for taking us as your children, Father. प्रभु अपने संतानों के जैसे हमको लेने के लिए तेरा धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। As we ponder onto the word, जब हम परमेश्वर के वचन पे जाते हैं, one thing was coming to me. एक चीज जो मेरे पास आ रही थी,
We all want to live in a perfect world. हम सब लोग एक अच्छी जिंदगी, एक सिद्ध जिंदगी जीना चाहते हैं। COVID-19 has greatly affected the entire world. और कोविड-19 जो है वो पूरी दुनिया को बहुत अधिकायत में प्रभाव कर चुकी है। But one thing good happened because of it. प्रियो, एक चीज जो भली हुई है इसमें, You know, our nature is clearer now. हमारा जो हमारी प्रकृति है वो और भी खूबसूरत हो गई। I was seeing the post in different places that, you know, sky is more clearer, pollution is less, and roads are nice and tidy now. और मैं देख रही थी कि बहुत सारे फेसबुक पे पोस्ट्स आ रहे हैं कि जो आसमान है और भी खूबसूरत हो गया है, साफ हो गया है, पानी साफ हो गया है, जो हमारा स्थान है, जो धरती है वो और भी खिल के आ रही है। You know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because man is locked down. क्योंकि जो इंसान है वो घर में बैठा है। Do we really need to lock the man inside to see the world clearer? क्या हमको सच में इंसान को अंदर बंद करने की जरूरत है कि हम अपनी प्रकृति को खूबसूरत देख सकें? Did God really intend in that way? क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा चाहा कि इंसान जब बंद रहे तब प्रकृति खूबसूरत रहे? Different people were giving different opinion during these times. और जो इस कोविड-19 के समय में अलग-अलग लोग अलग-अलग सुझाव, अपनी राय दे रहे थे। And mostly people were saying, और ज्यादातर जो लोग कह रहे थे, yes, man has played with the nature, so he is reaping that now. कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की है, तो उसका फल अब वो भोग रहा है। Beloved, did God really intend the man to be locked in? क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा चाहा कि इंसान एक कमरे में बंद हो जाए, एक केज में हो जाए? The word of God says, वचन क्या कहता है? God created the world. परमेश्वर ने दुनिया की रचना की। And God created the world so that man may reign in that world with God. और परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना क्यों की? ताकि इंसान परमेश्वर के साथ राज करे। But today, look, we are inside the houses. मगर जरा आज देखिए कि हम लोग आज कमरों में बंद हैं। And we are thinking now whether to go out or not. और हम सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं या ना जाएं, सुरक्षा है या नहीं है। But God wants to give us security in His name. अगर परमेश्वर अपने नाम में हमको सुरक्षा देना चाहता है। I'm from mountain zone. मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ बहुत पहाड़ है, पहाड़ी इलाके से मैं आती हूँ। There are beautiful trees all over, and you know, clean water and fresh gaze. I can have every day there. और उधर जो पेड़ है, लंबे लंबे पेड़ है, खूबसूरत सी नदियाँ बहती हैं, तालाब है, पानी बहुत साफ है और देखने के लिए बहुत खूबसूरत सी प्रकृति है। And one thing I really like when I go there is to sit near the pond or a river or lake. और जो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं वहाँ जाती हूँ कि मैं तालाब के पास बैठ जाती हूँ और उधर मुझे उसको देखना बड़ा अच्छा लगता है। There is something mysteriously peaceful about the pond. और जब मैं जाती हूँ एक अजीब सा रहस्यमय तो लगता है, मगर बहुत अजीब सी शांति, अनूठी सी शांति मुझे मिलती है। The mystery comes when we don't know what is inside the water. और रहस्य तब मुझे लगता है क्योंकि मुझे दिखता नहीं कि पानी के नीचे क्या है। There are lots of animals inside the waters. और पानी के नीचे बहुत सारे जानवर हैं। Algae, fungi, everything is there. और काई है और अलग अलग तरीके के प्राणी भी है, पौधे भी है। But when water is peaceful, मगर जब पानी एकदम शांत होता है, it just reflects the glory of heaven, of the sky. तो जो आसमान की खूबसूरती है वो उसके पानी में उसका अक्स दिखाई देता है। I can see sky, I can see clouds, I can see trees, reflection of trees upon the surface of the water. और उस तालाब की शांति में, उस तालाब की सतह में मुझे पेड़ भी दिखते हैं और जो भी आसमान में ऊपर है उसकी तस्वीर मुझे उसमें दिखती है। And it looks so beautiful. और बहुत ही खूबसूरत वो दिखता I है। tell you, I spend hours together just to see this beauty. और मैं आपको सच बताऊं तो मैं घंटे बिता देती थी और उस शाम से पानी को घूरती रहती थी, देखती थी, निहारती थी। But मगर when the water is undisturbed, it looks like the mirror image of the sky above. जब पानी जो है बिना शांत रहता है, बिना किसी खिलवाड़ के रहता है, तो जो है वो एकदम आसमान की अक्स या हूबहू तस्वीर दिखती है। But you know what? In just 1 second, you can distort the peacefulness of that water. मगर एक क्षण भर में ही वो जो पूरा शांति है उसको हम भंग कर सकते हैं। You don't need to be very powerful to do that. आपको उसके लिए बहुत सामर्थ्य होने की जरूरत नहीं। You don't have to go to the gym and to build your body to
do that. और आपको जिम जाके मशक्कत करने की जरूरत नहीं किया। All you have to do is to take a pebble एक छोटा सा कंकड़ लीजिए and throw it into the और water. उस पानी में डाल दीजिए, And all the peacefulness and calmness of the water just goes. और जितनी भी शांति थी और आराम था, विश्राम था, वो सारा उस पानी का भंग हो जाता है। And the glassy surface is broken up, and all we see the rippling effect of the water distorting the surface. और हम देखते हैं कि तालाब जो दर्पण जैसा जो एक शीशे जैसा दिख रहा था, वो पूरा खराब हो जाता है। जो सतह है वो ऊपर खाबड़ हो जाती है और तरंगे उसमें आ जाती हैं। And whatever is inside it starts bubbling up. और जो अंदर है उसमें बुलबुले आ जाते हैं। Sky is gone, tree is gone, and the beauty is gone. और पानी में ना तो अब आसमान दिख रहा है, ना उसमें पेड़ दिख रहे हैं, और जो खूबसूरत सी तस्वीर थी वो खराब हो जाती है। When God created heaven, earth, beautiful nature, beloved, water, dry land, plants, everything, जब परमेश्वर ने इस खूबसूरत प्रकृति की, संसार की रचना की, everything, whatever was within जो भी it, उसमें है, पेड़ होंगे, सूरज, आसमान, सब कुछ, it was in peaceful nature. तब वो शांति से बनाए गए थे। उसमें आराम था, उसमें विश्राम था। All what God has made reflected the glory of heavens. और जो भी खुदा ने बनाया उसमें परमेश्वर की स्वर्गीय जो खूबसूरती थी, स्वर्गीय तस्वीर, परमेश्वर का अक्स प्रकृति में था। Just like God had intended. जैसे खुदा ने चाहा था कि परमेश्वर की जो संसार खुदा ने बनाया है उसमें खुदा की परछाई दिखे। But in that peace, peace and calmness, something happened, an enemy came. और इस शांति में, आराम में कुछ गड़बड़ हुई और एक दुश्मन आया। He deceived Adam and Eve, और उसने आदम और हवा को धोखे में लिया, leading them into open rebellion against God. और ऐसा धोखे में लिया कि वो परमेश्वर के सामने विद्रोह करने लगे। And this act of rebellion was like throwing stone into the water. और वो विद्रोह करना उसी के मानंद होगा कि जैसे खूबसूरत सी तस्वीर उस तालाब में आसमान की दिखती थी और उसमें हमने कंकड़ डाल दिया हो, creating the rippling effect and distorting the picture of the nature. और जैसे उसमें खूबसूरत सी आसमान की तस्वीर उस तालाब में दिखती थी, हम में परमेश्वर की तस्वीर दिखती थी, और अब वो तस्वीर जो है वो खराब हो गई है, भंग हो गई है। And the bad thing is, और बुरी बात क्या है, it is distorted even now. आज भी वो तस्वीर खराब है। Beloved, the issue, we all know that Adam and Eve, they ate the fruit. हम सब जानते हैं कि आदम और हवा ने उस फल को बनाया, They ate the खाया। fruit. And the problem was not that fruit. और जो बात थी वो उस फल को खाने में नहीं थी, It was the disobedience that had brought them away from the Lord. वो जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। It was the right to determine by themselves what was right and what was wrong for them. और बात ये थी कि वो खुद चाहते थे कि मैं ये निर्णय लूं कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है, मैं अपने निर्णय खुद लेने लगूं। Essence of sin is the sin of longing for autonomy. और जो पाप का जो सार है, अगर हम उसको संक्षिप्त में बोले तो वो ये होगा कि मैं अपने आप को, अपने खुद के ऊपर राज करूं, अपने निर्णय खुद लूं, अपने नियम जो है मैं स्वयं बनाऊं। The moment they ate the fruit and they got into disobedience, जिस क्षण में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उस फल को खाया, they were into rebellion and sin against God. तो उन्होंने परमेश्वर की बातों का विद्रोह किया और परमेश्वर के सामने पापी ठहरे। Before that, God indeed made something good and beautiful, everything. और उससे पहले जो खुदा ने बनाया था अति खूबसूरत था। But now man wanted to put himself in the position of God. मगर अब हम देख रहे हैं कि जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो अपने आप को परमेश्वर के स्थान में रखना चाह रहा He है। wanted to decide what was good for them and what was evil for और them. जो मनुष्य है वो खुद देखना चाहता है कि मेरे लिए भला क्या है, बुरा क्या है, मैं अपने निर्णय खुद लेना चाहता हूँ। Don't you see this in the world in total display today? क्या आप आज के संसार में इस चीज को नहीं देखते? We are living in the world where we want to decide for ourselves what is good for us and what is bad for us. हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ मुझे निर्णय लेने हैं, हम निर्णय लेना चाहते हैं कि मेरे लिए सही है और ये गलत है। But you know what? मगर क्या आप God जानते हैं? created man with the dust. परमेश्वर ने मनुष्य की रचना धूल से की। He created them with the dust so fragile because he wanted man to be near them. और परमेश्वर ने इंसान को नाजुक कितना बनाया, मिट्टी सा क्यों बनाया, ताकि परमेश्वर के दिल के करीब, परमेश्वर के समीप वो रहे।
God wanted to take care of humans. That's why He created them with dust. और परमेश्वर ने मनुष्य को धूल से इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर खुद उसका ख्याल रख सके। He was longing for companionship in that piece of dust. और प्रियो, परमेश्वर ने हमको धूल से बनाया और उस धूल से बनी हुई एक जीव का परमेश्वर साथ चाहता था। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता था। You know what? God wanted to take care of us. और परमेश्वर ने हमको नाजुक बनाया कि वो हमारा ख्याल रखे, He wanted to lead us. हमारी अगुवाई करे, He wanted humans to reign with the Lord. और चाहता था कि हम खुदा के साथ शासन करें। And in return, और बदले में man had to be with God. That is only thing he had to maintain. एक ही चीज जो हमको करनी थी वो खुदा के साथ रहना था। And man couldn't do that. और प्रियो, मनुष्य वो एक चीज ही नहीं कर पाया। And in the act of disobedience, he was kicked out of Eden. और अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो जंगल से बाहर निकाल दिए गए। You see, we prefer our own wisdom to God's wisdom. हम ज्यादातर अपनी जो बुद्धि है वो परमेश्वर की बुद्धि से उत्तम समझते हैं। Our desires to God's will. हम अपनी चाहतों को परमेश्वर की चाहतों से उत्तम समझते हैं। And our own reputation to God's honor. और हम अपने आदर को परमेश्वर के आदर से बड़ा मानते हैं। But the big question is, मगर जो सवाल उठता है, if God wanted so much companionship with the man, afterwards did he do something? कि अगर खुदा को सच्ची में इतना साथ की जरूरत थी या परमेश्वर हमारे साथ ही बनना चाहता था, तो परमेश्वर ने इस जो विकार हो गया, इसका जो खराब हो गई दुनिया, इसमें परमेश्वर ने क्या किया फिर? God did something or not? क्या परमेश्वर ने कुछ किया? We see in Exodus 34:6. हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 34वां अध्याय उसका 6वां पद। And it says, God passed before Moses and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sins. और यहोवा उसके सामने होकर ये प्रचार करता हुआ चला, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। It is so peaceful to know कितनी शांतिपूर्वक बात है God is forgiving God. कि हमारा परमेश्वर हमको क्षमा करना चाहता That है। sums the love of God, beloved. और प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को ये संक्षिप्त में बोल सकता है कि हमारे कुरीतियों को, हमारे कुकर्मों को परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। God waited for just one person, that if he is willing to go back to the Lord in friendship and companionship. और परमेश्वर ने एक ऐसे इंसान का इंतजार किया कि वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से साथ की चाह करे। And he saw that in Abraham. और परमेश्वर ने वो साथ की चाह को अब्राहम में देखा। Abraham was longing to get connected with और God. अब्राहम तो जो था वो परमेश्वर का खोजी था, उसको परमेश्वर का साथ चाहिए था। And here God comes. और परमेश्वर आता है And he tells him, और क्या बोलता है? I will make you blessings to the nations. कि मैं तुझे आशीषों का स्रोत बनाऊंगा। Amen. Amen. God chose Abraham not because he was deserving. और परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो बहुत ही योग्य, काबिल था। 75 years was not a very good age to be chosen for something. और 75 साल किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छी उम्र नहीं है। But God waited for him so that he may not boast on himself, but he would know that God can do anything. मगर परमेश्वर ने ऐसी उम्र में उसको चुना ताकि वो खुद की बड़ाई ना करे, अपने आप को बेहतर ना समझे, मगर वो ये समझे कि परमेश्वर ने उसका साथ दिया। The same is true for you and for me today. प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए भी सत्य हो सकता है। We cannot bring anything to the table of God. हम परमेश्वर के सामने कोई भी चीज ऐसी नहीं रख सकते जो उसके लायक हो। The only thing that God wants us to give him a heart that would follow him. और एक ही चीज जो परमेश्वर के लिए योग्य है या परमेश्वर जो ग्रहण करेगा वो ये है कि हम अपना दिल परमेश्वर के सामने तैयार रखें। Our beauty, our talent, our things, whatever we are today is not going to work for the Lord. और हमारी कितनी भी खूबसूरती हो, लियाकतें हो, काबिलें हो, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। It is only the grace of God that sustains us. जो एक चीज हमको आज स्थिर रखती है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। Romans 5:8 says, रोमियो उसका 5वां While we were yet sinners, कहता है कि while we were yet sinners, जब हम पापी ही थे,
Jesus died for us. यीशु मसीह हमारे लिए मरे। He did not choose us when we were very beautiful. और very खुदा ने nice. हमको तब नहीं चुना जब हम बहुत ही खूबसूरत थे, उत्तम थे, सिद्ध थे। He chose us because we couldn't do anything for us. We're just hopeless, beloved. और प्रियो, परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना क्योंकि हम आशाहीन थे और किसी कार्य के योग्य नहीं थे। If we were able to live God without God perfectly, अगर हम परमेश्वर के बिना सिद्ध जी पाते so we could have inherited in eternal life. तो हम खुद ही सनातन का जीवन, आजीवन पा लेते। But we couldn't do that. मगर प्रियो, हम ऐसा नहीं कर पाए। We couldn't follow God correctly. हम परमेश्वर के पीछे ठीक से नहीं चल पाए। This is why God got connected to us once again. इसलिए परमेश्वर को आना पड़ा कि हम परमेश्वर के साथ फिर से मेल में हो जाएं। Beloved, in this world, pluralism says, आजकल की दुनिया में अनेकावाद बहुत ही विचलित है। and the pluralism says और अनेकावाद क्या कहती है? that God is sitting in the mountain कि परमेश्वर पर्वत पे बैठा है and we all are searching for Him. और हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हम सब, Some people are going this way, कोई एक रास्ता पकड़ता है some are going the other और way. कोई दूसरा रास्ता पकड़ता But the है। Word of God मगर says, वचन कहता है God came down on earth in search of us. कि परमेश्वर इस दुनिया में आया कि वो हमको देखे, हमको खोजे, हमको चुने। Beloved, we did not look for God. हमने परमेश्वर को नहीं खोजा, हमने परमेश्वर को नहीं चुना He came down on earth in search of और us. परमेश्वर इस संसार में आया कि वो हमको खोजे, हमको चुने। John 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है For God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that He gave His only begotten कि Son. उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, So whosoever will believe in Him, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे he will not die, but he would inherit eternal life. नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Amen. This is the essence of the gospel. प्रियो, ये परमेश्वर के सुसमाचार का सार है। I used to think when I was a child, जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी Adam and Eve ate the fruit and now I cannot do anything. कि आदम और हवा जो थे इन्होंने फल खा लिया, अब हम सबको उसका भोगना पड़ रहा The है। world is corrupted because of them. अब दुनिया तो उनकी वजह से दुष्ट हो गई है, And now we cannot do अब तो मैं anything. कुछ नहीं कर I wish I could be Eve. सकती। हो सकता मैं हवा होती So I would have obeyed God in तो perfection. तब मैंने खुदा की बात मानी होती। But when I came to the Lord, मगर जब मैं परमेश्वर के पास आई, God spoke to me. खुदा ने मुझे बोला You can still make your world perfect with the Lord. कि आज तुम आज भी अपना जीवन सिद्ध बना सकती हो जब तुम परमेश्वर के साथ हो जाती हो। Doesn't matter if Adam and Eve didn't obey God. कोई बात नहीं, आदम और हवा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। It doesn't matter even if your forefathers did not obey God. कोई बात नहीं, आपके पितरों ने, आपके पिताजी ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। You have got a chance to change your life. आज आपके पास मौका है कि आप अपनी जिंदगी को बदल लें We have got another chance to clear the distorted picture. और हमारे पास फिर से मौका है कि वो शांत से पानी में जो आसमान की तस्वीर दिखती थी, हम में फिर से परमेश्वर की तस्वीर देखे, हम परमेश्वर के स्वरूप में हो जाएं। We can still have the reflection of God in us. हम फिर से परमेश्वर के स्वरूप में हो सकते हैं। And I tell you, और मैं आपको बताना no चाहूँ, pebble can distort it now. कोई भी कंकड़ या पत्थर उस तस्वीर को खराब नहीं कर सकता। Amen. आमीन। The word of God says, यहोवा का वचन कहता है, put on the Christ in you. यहोवा को मसीह को ओढ़ लो। Amen. When we do that, जब हम ऐसा करते हैं, God is going to clear the picture for us. परमेश्वर हमारी तस्वीरों को साफ कर सकता Because He has given us the right. है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया And है। the word of God और says, वचन क्या कहता है? John 1:12, यूहन्ना 1:12 when we receive Him, कि जितनों ने उसको ग्रहण किया we become the children of God. उतनों को उसने उसकी संतान होने का अधिकार दे दिया। What we have to do? और हमको क्या करना है? No sacrifice, ना तो कोई बलिदान करना है, no talent, ना कोई योग्यता दिखानी no है, beauty, ना खूबसूरती दिखानी है, no property. ना हमको अपनी जायदाद दिखानी है। You just have to receive Him. हमको परमेश्वर को ग्रहण करना है, And यीशु मसीह को ग्रहण करना है। And the distorted picture can become beautiful again. और जो उस तस्वीर का विकार हो गया था वो फिर से खूबसूरत हो He'll सकती become है। your father. परमेश्वर हमारा पिता बन He जाता will है, become your guide. हमारा अगुवाई करने वाला बनता And है, wherever He will guide, He will provide. और जहाँ वो अगुवाई देता है उसका प्रबंध उसके साथ होता है। Amen.
Amen? We can still have relaxed time with the Lord. और फिर से हम विश्राम में परमेश्वर के साथ आ सकते The हैं। word of God says, वचन कहता है "Come to me, O heavy laden, कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ I will give you और rest." मैं तुमको विश्राम दूंगा। God has given this chance to come to Him yet again. प्रियो, परमेश्वर ने फिर से हमको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पास आए। Are you willing to take that rest? क्या आप परमेश्वर के विश्राम को ग्रहण करना चाहेंगे? Would you just lay down your burdens to God and tell Him, "Lord, I want to get into that clear picture now." और अपने बोझ को हम यहोवा को दे दें और परमेश्वर से बोले मुझे फिर से वो खूबसूरत सी तस्वीर बननी। Beloved, the word of God says, वचन कहता है "I have not called you servants. कि मैंने तुमको दास नहीं I बुलाया, have called you friends. मैंने तुमको मित्र बुलाया है। And whatever I have got to know from Father, I have told you." और जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है मैंने तुमको बताया है। Amen. Amen. The word of God says, वचन कहता है John 15:7, यूहन्ना 15 उसका 7वां पद, "If you abide in me यदि तुम मुझ में बने रहो and my word in और me, मेरा वचन तुम्हें बना रहे whatever you will ask, तो जो चाहो तुम मांगो it will happen." for you." तुम्हारे लिए हो जाएगा। Proverbs 3:5 says, नीति वचन उसका 3रा अध्याय 5वां पद, "Do not have your own understanding. तुम अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, Do not lean on your own understanding, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, but trust in the Lord. मगर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा And रखना He will fulfill the desire of your heart." और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Amen. Amen. He will fulfill the desire of your heart. वो तुम्हारे दिल की मनोकामनाओं को भी पूरा करेगा। What I desire. और मैं क्या चाहती I हूँ? want a peaceful life. मुझे अपनी जिंदगी में शांति I चाहिए। want my generation to be peaceful. मैं अपनी पीढ़ियों को शांति में देखना चाहती हूँ। And God says, और खुदा कहता है Amen. Amen। Are you willing to give a chance to क्या them? आज आप परमेश्वर को एक मौका देंगे कि खुदा अपने आप को मुझे दिखा? In this Corona time, इस कोरोना के समय में when the world is in disorder, जो beloved, पूरी जिंदगी, जो पूरी संसार है वो ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ हो गई है the image of man's perfection is distorted now. और जो इंसान ने सिद्ध माना वो भी तो खराब हो गया है। Whatever they trusted upon, it's all gone. जिस चीज पे इंसान ने भरोसा रखा अब वो स्थायी नहीं दिखती। The talents are not working. जो काबिलियत है हमारी वो कार्य नहीं कर रहे They are scared to go out now. और हम घर से बाहर निकलने के लिए डरते हैं। We want to live, हम जीना चाहते हैं but we are afraid of death. मगर हम मृत्यु से डरते हैं। But beloved, God is there to protect us. प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है And he says- कि वो हमारी सुरक्षा करे। And He says, और वो कहता "I है will not leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, I will not forsake मैं you." तुझे नहीं त्यागूंगा। Would you invite Him into your life today? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं Who came in search of you, जो हमको ढूंढते हुए दुनिया में आया so that we may have eternal life? ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, खुदा यीशु, we thank you for this time. इस समय के लिए तेरा धन्यवाद। Lord, you loved us so much, Lord. हमसे आपने इतना प्रेम किया। Lord, the image which was distorted, परमेश्वर, जो तस्वीर खराब हो गई थी, you have given us chance to make it clear again. हमको आपने मौका दिया है कि हम फिर से उस तस्वीर को ठीक कर सकें। Lord, we give ourselves to you, Lord. अपने आप को हम आपको देते हैं, We humble ourselves in your presence. आपके सामने खुद को दीन करते हैं। Lord, accept us, Lord. प्रभु, हमको ग्रहण We कीजिए। invite you into our lives हमारे जीवन में हम आप आमंत्रित आपको करते हैं so that you may become a God. कि आप हमारे खुदा बन जाइए। Jesus, we love you, Lord. यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते In Jesus' name we pray. हैं। यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। God wants to be your companion, beloved. परमेश्वर हमारा साथी बनना Keep चाहता है। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए He wants to be your friend. वो आपका दोस्त बनना चाहता है। Give him a chance, beloved. कि संसार का करता, दुनिया का करता आपका दोस्त बने। He wants to hold your hand. He wants to say that you're my friend. दोस्त है तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यीशु। प्यार है, हाँ, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया,
us this time, Lord. इस समय के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। We pray for each and everyone who is listening to this जो program. इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु आशीष दीजिए, Touch their lives, Lord. उनके जीवनों को छुए We release them in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से प्रभु। Thank आप you. उनको चंगा ठीक कीजिए यीशु। Thank you for the friendship that you have given us in your Son Jesus Christ. यीशु मसीह में जो आपने हमको मित्रता दी है उसका धन्यवाद। Thank you for calling us your own Master. अपना परमेश्वर आपने खुद को हमको बना लिया प्रभु, तेरा धन्यवाद We love you, Lord. प्रभु, धन्यवाद We want to bless you and say, प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं and we tell you और हम आपको that कहते we हैं, love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। God has given this beautiful opportunity to be with you all, खुदा ने हमको ये मौका दिया कि हम आपके साथ रहें and I'm sure we had a wonderful time with the Lord. और मैं आशा करती हूँ कि हमारा समय अच्छा रहा हो। I sincerely pray, मैं सच में प्रार्थना करती हूँ may God bless you and release you. परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। God bless you all. परमेश्वर आशीष दे। Amen.